liked what you saw. To be honest, it takes a lot of time, money, energy, effort to create a show of this scale and magnitude. Um, Talking about scale and magnitude, I'd just like to share some data points about this particular show. We are very proud that, it's amazing that these numbers that I'm going to share with you are actually real. The show has done, between chapter 1 and chapter 2, we've got about 1.6 billion. Let me repeat, it's not million, but billion views. 160 million people have seen this show. They are unique viewers of this particular show. And interestingly, of that 60 million of them actually come from Maharashtra and the NCR region alone. So it's been a big hit in this part of the country for sure. And when we launched chapter 2, we had 50 million views in less than 17 hours. And when we launched the trailer of chapter 3, we were trending at number 1 in less than 6 hours, all organic. And that's the power of a good show. We genuinely believe that this happens only when people connect with the story. I'd like to thank a lot of people who did a very, very major part in this, in creating this particular franchise, starting with my team at MX, of course. The brilliant cast and crew, some of whom we're going to meet today. Without their passion and dedication, this is not going to be possible, to be really honest with you. And, there is eventually only one captain of the ship. And I think all credit will go to that captain who actually breathed life into these very, 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 very beautiful characters. Whether that character be Baba Nirala, Bhopa, Pammi, Akki, Satti, Ujagar, Sonia. The kind of effort that's gone to build each and every character and the love from the fans that these characters have got, the attachment they've got, has been done by one only gentleman. And I'd like to invite him on stage, the captain of the ship, the man with the vision, Mr. Prakash Jha. Prakash ji, can we have you on stage, please? सर, सीजन 3 के बारे में बता दीजिए। ये तीसरा है। अभी पिछले साल भर से जहां भी जाओ ये पूछे तो तीसरा कब आ रहा है? तीसरा आ रहा है अभी 3 तारीख को तीसरा। और मुझे तो बड़ा आनंद आया काम करने में। थैंक्स टू MX प्लेयर, उनकी टीम का विश्वास और support. And I was very, very fortunate to have a wonderful cast and crew. Bobby Deol, Chandan, Aditi, Isha, ये सब लोग तो आए हैं, बाकी भी जितने भी थे सब बहुत लगन के साथ काम किया। और बाकी तो आप लोग जब सवाल पूछेंगे तो जवाब दे दूंगा। मैं ज्यादा समय लूंगा नहीं। आपने पहला एपिसोड देखा ना? कैसा लगा? बात बन रही है? Thank you. Thank you, Prakash ji. We'd now like to invite Aditi Mohankar and Chandan Roy Sanyal. Come in, please. And the new entrant in our series, Isha Gupta.
can I request Aditi and Chandan and Nisha to just say a few lines about their role and their experience being part of this series. Don't know. I would start with probably just a very big warm gratitude with all my heart towards Prakash sir, who believed in me that I could play this part. I didn't think so, honestly, because being a wrestler was something I felt was unimaginable for me. Yeah. And making that effort and from the beginning, the faith that sir had in me, I think that was my only motivation. And the next thing was speaking Haryani, Punjabi, which again was a little bit of a task is what I thought, but I pulled through because of sir. First, because everybody at MX Player, I'm extremely grateful. Thank you so much for believing in me. And I think what is happening for me is now I'm going to really see a different side of her. Because everybody is at a certain point operating from a certain emotion, and when it flips, its intensity increases, and that's what I would say happens with Pammi now. And it's going to be very exciting because the chemistry between Baba, Pammi, and Bhopa will bring a very new flavor to this series now in season 3. Chandan. नमस्कार, सबसे बड़ा आपका शुक्रिया, आप आए और मेरे को सुन रहे हैं यहाँ. थैंक यू MX Player, प्रकाश जी, Aditi, Isha, my co-actors. Since I've been asked to say something about Bhopa, Bhopa Swami प्रकाश जी की दिमाग की उपज है. एक ऐसा चरित्र जो मेरे करियर में या मेरे ज़िंदगी में टॉप रहेगा हमेशा, कि इसमें मुझे खेलने का बहुत मौका मिला. और काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा कि अगर भोपा को आप एक शब्द में बताएं तो कैसे बताएंगे. तो प्रकाश जी ने मुझे ये कहानी सुनाई और ये रोल बताया, तो मैंने इसकी तैयारी शुरू की. मेरे दिमाग में बस एक ही जानवर जो मैंने इसको प्ले करने के टाइम हमेशा सोचा हुआ है, एक अजगर या एक सांप जो चुपचाप रूम में आता है और हिस करता है, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं आती और आपके कंधे पे चढ़ के बैठ जाता है और आपको डस भी लेता है, आपको पता भी नहीं चलता. तो वो है भोपा, जो आपने 2 सीज़न आप देख चुके उसको, और ये तीसरा सीज़न जो है इसमें मैंने प्रकाश जी की अनुमति से कुछ अलग रंग बिखेरने की कोशिश की है, जो आप देखेंगे कि सिर्फ काला ही नहीं है वो, और भी काफ़ी सारे रंग हैं इस चरित्र में जो इस बार आपको जब मिलेगा. थैंक यू. Thank you, Chandan. Isha, you joining the series? Can you tell us about it? नमस्ते, आप सभी का वेलकम. थैंक यू आप लोग यहाँ पे आए हमारे शो के प्रमोशन के लिए. शो के बारे में मैं पहले ये कहना चाहूँगी कि लॉकडाउन में सबने देखा, मैंने भी देखा, एंड बहुत ही दिलचस्प किस्म का शो है. एंड आई वुड रियली लाइक टू से कि हैट्स ऑफ टू प्रकाश सर एंड गौतम की एक ऐसा शो बनाया जो आई मीन इंडिया में नंबर 1 रहा है OTT पे. एंड इसीलिए आई थिंक सभी के घरों में हम सब ने बैठ के देखा ये शो, बिकॉज it's a show which shows something very different, and it's a show which really intrigues the audience, and I was one of them. और भोपा एंड अदिति के बारे में कहना चाहूँगी, बहुत ही दोनों के आई मीन किरदार भी बहुत अच्छे हैं. बाबा निराला का भी बहुत ही अच्छा शो बना है. कि आई थिंक जब ये आया था मेरे पास लॉकडाउन में, जब मैं शो देख रही थी फर्स्ट सीजन, तो मुझे याद है मैं अपनी फैमिली के साथ देख रही थी. एंड आई रिमेंबर जस्ट एक होता है ना दिल से ऐसे करना, यार एक ऐसा शो मिलना चाहिए कि इतना फोकस हुआ है हर एक किरदार पे, स्टोरी इतनी अच्छी है, इतनी इंट्रीगिंग है कि आप हमेशा वेट करते हैं नेक्स्ट क्या होगा. एंड आई रिमेंबर प्रकाश सर ने जब मुझे कॉल किया, उन्होंने बस मुझे बोला कि आश्रम 3 के लिए मुझे फ़ोन कर रहे हैं. मैंने बोला कि बस आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो नो मैटर वॉट, बिकॉज इट्स अ ग्रेट शो, ग्रेट स्क्रिप्ट विद ग्रेट एक्टर्स, ग्रेट. So I think it's one of the shows that you feel really proud कि अच्छा आप एक ऐसे शो का हिस्सा बने. Thank you. Thank you, Isha. It's time now for आपका सवाल और आश्रम की तरफ से answers आपके सवालों के लिए. So if you just raise your hand and say your name and the publication you come from. Hi everyone, this is Pari from Magnetic Area. जब नाम सबको जब नाम. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पूछना चाहूँगी भोपा जी से कि सर जब ये ऐसा एक रोल मिलता है जिसमें आपको लोगों से नफरत मिले, तो वो एक लोगों के सामने प्रेजेंट करने में कितना टफ रहता है?
करते टाइम तो मैं ये नहीं सोचता कि मुझे कितनी नफरत या कितना प्यार मिलेगा. लाइक टू बी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द अप्रिसिएशन और रिसेप्शन वन कैरेक्टर वुड गेट और नॉट. बिकॉज कोई भी किरदार आप करते टाइम ही नहीं सोच सकते तो उसको ऐसा बनाऊंगा कि लोग मुझे नफरत करने लगे. बट येस, ये कैरेक्टर जो है, लाइक आई सेड, इट्स वेरी डार्क कैरेक्टर जो है, जिसमें मुझे एक्चुअली सोशल मीडिया में बहुत गालियाँ पड़ी हैं. मतलब मेरे पेज पे लोग आके गालियाँ दे के चले जाते हैं. मैं लाइक भी कर देता हूँ उनको, थैंक यू वेरी मच. क्योंकि मुझे लगता है कि एक अभिनेता के लिए बहुत मज़ेदार चीज़ है कि आप एक किरदार करते हुए आप एक दर्शक की ऐसी चीज़ों को छू लेते हैं. मतलब अब कोई प्यार मोहब्बत करके तो सब खुश रहते हैं, लेकिन एक नफरत के साथ आप उनका प्यार बटोर रहे हैं. आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एनी एक्टर. तो मैं तो पॉजिटिवली लेता हूँ गाली गलौज. मैं खुद इस शो में इतना कर रहा हूँ तो मुझे मिलनी चाहिए ना. अनीशा मैम, आपसे पूछना चाहूँगी, पहले 2 सीजन जैसे आपने बताया कि आपने देखे हैं और हम सबने भी देखे हैं और काफ़ी फेवरेट शो है ये सबका. तो जब आपको, जैसे आपने बोला कि आप एक्साइटेड थे इस शो के लिए, आपके दिमाग में जब सबसे पहले क्या आया जब प्रकाश सर का फ़ोन आपके पास आया और आपको ये सीरीज मिल गई, तब आपके दिमाग में सबसे पहले क्या चीज़ आई? मैंने बजट पूछा. नहीं, बट जोक्स अपार्ट, ऑनेस्टली इट्स जैसे मैंने कहा, यू नो कुछ शोज होते हैं आप देखते हैं, दिल की बात सामने आती है. मैंने सर पहली चीज यही बोली, सच में यही बोला था ना कि बजट बताइए. पर देखिए, आप अगर ऐसा कोई शो देखते, जैसे मैंने बोला, यू नो, अब खासकर ओटीटी का फायदा ये हो गया है कि वो जो एक स्टैगनेंट जो हमारी स्टोरी चलती है ना, वो नहीं चलती है ओटीटी में. इट्स नॉट कि लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, बट हमें पता है कि ज़्यादा ऑडियंस के पास पहुंचेगा. स्पेशली चैनल्स लाइक MX, जाओ आपको पैसे नहीं लगते. तो मुझे पता है मेरे लिए वो शो बहुत इंपॉर्टेंट है. जो एक तो पहली चीज़, हम किसी भी, मेरे लिए तो एटलीस्ट मैं, मेरी सिस्टर और माई पेरेंट्स वे वॉचिंग टुगेदर. ऑल्सो मैं जिसे मिलती हूँ, अच्छा मैम आप आश्रम में, अरे आश्रम शो देखो, क्योंकि हर एक को अवेलेबल होता है ईजिली. छोटे से छोटे, एक मेरठ जैसे शहर में भी, जहाँ मेरे फादर की फैमिली है, मैं वहाँ गई थी तो अरे हमने न्यूज़ में पढ़ा, न्यूज़पेपर, मेरठ के न्यूज़पेपर में आया है आश्रम के बारे में. तो इट वॉज वन ऑफ दोज थिंग्स कि आपको पता है कि अच्छा इंडिया के छोटे से छोटे शहर में भी जाएंगे, वहाँ पे भी जिसके पास भी नेटवर्क है वो MX पे आश्रम देख रहा है. एंड मैं वो चाहती हूँ कि मैं ऐसा प्रोजेक्ट करूँ कि मुझे पता है कि एक छोटे से शहर, जैसे मेरठ तो चले तब भी बड़ा शहर है, मगर मैं चाहती हूँ कोई रामपुर भी जाए तब भी देखे कि अच्छा हाँ आश्रम नहीं चलता है. तो आई थिंक इट वॉज वन ऑफ दोज थिंग्स दैट इट्स सच अ गुड अपॉर्चुनिटी दैट आई कैन वांट टू से. हेलो, हाँ मैं नवभारत टाइम्स से हूँ, सरोज धूलिया. मैंने दोनों सीरीज इसकी देखी हैं, मुझे काफ़ी अच्छी लगी और काफ़ी मतलब बांध के रखती हैं. लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अब ये काफ़ी देख लिया है कि बाबा जी ये कर रहे हैं या वो ऐसी चीज़ें हो रही हैं, या गोपा जी जो है तो वो कुछ अपनी उसमें उनका साथ दे रहे हैं. लेकिन 3rd सीरीज में आप कैसे ऑडियंस को बांध के रखोगे? क्योंकि ये देख देख के अब तक मैं भी वो हो गई हूँ कि यार ये लगातार बाबा जी कुछ नया नया कर रहे हैं, इस लड़की को उसके साथ ऐसा, उसके साथ. तो 3rd सीरीज में आप कैसे वो करोगे कि पकड़ के ऑडियंस? मैं हूँ प्लस मैम 3rd जून आई गया, 4 दिन की बात है, आप देख लीजिएगा कि कैसे डिफरेंट किया है. कुछ डिफरेंट किया है तभी ऑडियंस ने 1st के बाद 2nd का वेट किया, 2nd के बाद 3rd. आई मीन ऑफ कोर्स द फैक्ट दैट अदिति है उसमें, द फैक्ट दैट चंदन है, द फैक्ट दैट बॉबी जी है, every time there's something new and ये आप देखेंगे. I mean it's very different, it's very new and of course मैं हूँ उसमें, कम बजट में भी बट मैं हूँ. Hi, good afternoon. This is Nivedita. So, Prakash, sir, this journey started in pandemic, the ashram journey. But now ashram 3 has seen that particular phase we have moved on from that particular phase. So, you think that ashram 3 is important and close that phase? But I didn't get your question. What has happened? So, the journey of ashram started in pandemic. I think the 4th season came in 2020, right? And now ashram 3 is coming in 2022. So you think that this particular season is important and close that phase because we are finally meeting and then there is this entire shooting happening. Yeah, but when we conceived and when we shot the first 2 seasons, chapters, pandemic was nowhere inside it. Only after we finished shooting
that we suddenly were faced with pandemic. So, pandemic or no pandemic, ashram has its own existence, and the third chapter is very organic progression of the story, where Baba has reached in the second chapter, and where all the other characters have reached. You know, the growth from there, and what is the growth? What will happen to Baba? What will happen to Bobby? What will happen to Opa? What will happen to political interventions? What will happen to, you know, people's faith? This is what people want to know. I mean, there was a very valid question which my friend asked as to first two chapters you have been able to engage the audience. Now, what are you going to do in chapter 3? I mean, obviously, we are going to keep you engaged. If I don't keep you engaged, no Isha, no Aditi, no Bopa, no Baba can keep it going. It has to be the story. It has to be the movement of your mind, how I keep it engaged. And that is the constant challenge which every content developer or maker faces, and that is what they're trying to reach. This is what is happening in chapter 3, or you know, with any other content. Thank you. नमस्ते, मैं प्रेरणा मायापुर मैगजीन से। मेरा पहला सवाल प्रकाश शाह जी से है। सर, आपने फिल्मों में डायरेक्ट की हैं और अब आप OTT के लिए सीरीज डायरेक्ट कर रहे हैं। एक निर्देशक के तौर पर आप जब OTT के लिए कोई सीरीज जैसे आप आश्रम डायरेक्ट कर रहे हैं, आप किस तरह की क्रिएटिव इंडिपेंडेंस ले पाते हैं? एक डायरेक्टर के तौर पर आपको क्या फर्क नजर आता है? जैसे अभी बॉलीवुड में आप फिल्मों की परफॉर्मेंस देख रहे हैं, कैसी रही है, और आप आश्रम को देखते हैं जिसने वेब सीरीज के तौर पर बहुत अच्छा किया है, तो आपको ये डिफरेंस क्रिएटिवली भी और अदरवाइज भी आप इसको कैसे देखते हैं एक डायरेक्टर के तौर पर जब आप इसे मेरे लिए वेब सीरीज हो या फिल्म हो, फिल्म ही है। जिस स्केल पर मैं कहानी सोचता हूँ या करता हूँ, क्योंकि वो कहानी की मांग होती है। जिस स्केल पे राजनीति बनाई थी, और मैंने ही परीक्षा भी फिल्म बनाई जो सिर्फ 4 लोगों के बीच में कहानी घूमती है, और फिर ये आश्रम, क्योंकि आश्रम की जो परिकल्पना है आपके मन में, जो आपके पास रेफरेंसेस हैं, जो पब्लिक डोमेन में चीजें हैं, आप देखते हैं कि ऐसे बाबा लोग जब बैठते हैं और घूमते हैं, या इनके जो आश्रम होते हैं वो बड़े दिखावे वाले होते हैं, बड़े बहुत सारे लोग, बहुत बड़ा हुजूम हमेशा इनके आसपास घूमता रहता है। तो वो उस परिकल्पना को मैं तोड़ नहीं सकता, बल्कि उसको उससे बड़ा बना करके दिखा सकता हूँ। तो मेरे लिए फिल्म या वेब सीरीज में कंटेंट डेवलप करने में कोई फर्क नहीं नजर आता, ना ही मैं उस हिसाब से करता हूँ। जहां तक क्रिएटिव लिबर्टी की बात आप कहती हैं, तो क्रिएटिविटी एक जिम्मेवारी के साथ किया जाता है, और उस जिम्मेवारी के साथ मैं फिल्में भी बनाता हूँ, उसी जिम्मेवारी के साथ मैं वेब सीरीज भी बनाता हूँ। हाँ, ये जरूर है कि उस तरह की सेंसरशिप लैंग्वेज को लेकर के या बाकी सारी चीजों को लेकर के वेब सीरीज में नहीं होती है। इस वजह से नहीं होती है क्योंकि जब हम फिल्में देखते हैं तो एक सामूहिक दर्शन का कंसेप्ट होता है। वे एक साथ बैठ करके थिएटर में देखते हैं, तो एक साथ जब बैठ करके देखते हैं तो एक मर्यादा होती है, वो मर्यादा मेंटेन करनी पड़ती है। जब हम इंडिविजुअली एक टेलीफोन के ऊपर में या एक घर में बैठे अपने टेलीविजन के ऊपर में वेब सीरीज देखते हैं, तो वहां थोड़ी लिबर्टी ली जा सकती है, क्योंकि इंडिविजुअली आप चाहे तो उसको बंद कर सकते हैं, चाहे तो उसको देख सकते हैं, चाहे तो जैसे भी चाहे आप उससे बिहेव कर सकते हैं। तो वो एक थोड़ी भाषा में, बोलचाल में थोड़ी लिबर्टी हमको मिलती है यहाँ पे। हालांकि जितना संभव होता है जिम्मेवारी के साथ, उतनी लिबर्टी हम फिल्मों में भी लेते हैं।
तो कोई खास फर्क नहीं। जहाँ तक मेकिंग की फर्क है की बात है, जहाँ तक माउंटिंग की बात है, मेरे लिए एक ही जैसा है। मेरी वहाँ भी 300 लोगों की यूनिट होती है, यहाँ भी 300 लोगों की होती है। जब तक 1000-1500 लोग मेरे सेट पे नहीं होते, मुझे लगता ही नहीं कि शूटिंग चल रही है। तो मेरा काम तो वैसे ही थैंक यू सर। मेरा एक और सवाल है गौतम से। अभी आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन के समय से ही OTT प्लेटफॉर्म्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, कई सारे शोज आए। अभी जो सैचुरेशन है, लोगों के पास इतने ज़्यादा विकल्प हैं देखने के लिए, आप जाइए, आप लॉग इन करिए, आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। नाम नहीं लूँगी बट एवरीबडी नोज। ऐसे में एक OTT प्लेटफॉर्म के तौर पर आप इस सैचुरेशन से कैसे बाहर निकलेंगे? कैसे आप दर्शकों को वहां तक ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक पहुंचेंगे और वहां अपनी पहुंच बनाए रखेंगे? तो वो आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? उसी वजह से तो मेरे पास आते हैं। नहीं, टू बी ऑनेस्ट विद यू, आई थिंक सैचुरेशन ये सिर्फ हमारे माइंड में है। वीव गॉट आवर मंथली एक्टर्स आर मोर देन 100 million. Our country is a time-rich, money-poor country, and that is a fact, which basically means that there is a lot of time available to people. If your content is currently we are an AVOD platform, therefore it is available for free. Therefore, the barrier to consumption is very, very low. That means that ये saturation, क्योंकि हम शायद इस सर्कल में घूमते हैं तो हमको लगता है कि रोज एक नया शो आ रहा है, बट वो शो बहुत लोगों तक पहुंचता है ये जरूरी नहीं है। MX Player after YouTube is probably the largest distributed platform ever, and the fact that we are free, we have democratized content to be viewed. Premium content for free is actually not available anywhere else. तो जब आप कहते हैं कि सैचुरेशन है, मेरे और हमारी कंपनी के हिसाब से सैचुरेशन बहुत दूर है। There is a lot of people who are still dying for a lot of content. They want to watch content, but it is not yet democratized. A lot of it is behind a paywall, and India is not yet ready to pay for content yet. Is what our theory is. Free works in this country best. लोगों को तो रोज चाहिए नया मसाला, रोज चाहिए उनको। आपको पता है गांव-गांव में लोग मतलब आधा दिन उनका निकल जाता है कैसे करके बैटरी चार्ज करें। ने फोन की, फिर उसके बाद वो जगह ढूंढते हैं टीले के ऊपर में जहां नेटवर्क मिलेगा। तो आधे दिन काम करते हैं, आधे दिन देखते हैं, और फ्री में मिलता है डेटा। तो उनका रूटीन ही है और उनको रोज चाहिए। You'll be surprised that डेटा कभी-कभी खत्म हो जाता है तो लोग 12 बजे की वेट करते हैं और 12:15 बजे बिजी हो जाते हैं। So we see those spikes in data when we analyze all of it. So to be really honest with you, saturation is very, very far away. प्रकाश सर, आपसे सवाल है कि पर्सनली आप किसी बाबा को फॉलो करते हैं या ऐसे लोगों से दूर ही रहते हैं? फॉलो करते हैं? मैं तो आगे पीछे देख लेता हूँ कितने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। मैं ईमानदारी से, जो हमारे यहाँ सच्चा अध्यात्म है, शब्द बेकार करना इस्तेमाल करना, सच्चा हमारे यहाँ अध्यात्म है, और जो शक्ति मिलती है ध्यान करने से, और जो सच्चे गुरु हैं, जो किसी आडंबर में, किसी दिखावे में कहीं नहीं रहते, अपना ढूंढ रहे हैं, अपना अपनी खोज में लगे हुए हैं, जिनके पास आप बैठो, आपको बात करने की जरूरत नहीं है, आप बैठो तो वहीं आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो मेरी वाकफियत ऐसे लोगों से है, ऐसे जगहों से है, ऐसे स्थान से है। मैं जाता हूँ जिनके नाम मैं नहीं ले सकता क्योंकि उनका नाम है भी नहीं, वो चाहते भी नहीं, लेकिन इसकी आड़ में जो दुकानदारी चला रहे हैं, अभी आजकल कुछ वायरल हो रहा है ना, एक बाबा कह रहे हैं हमारे पैर को, अच्छा पहली बार में तो और एक बार अक्सर लगाओ, नहीं और एक बार अक्सर लगाओ। तो ये है हमारे यहाँ, और इसको प्रश्रय जो है हम देते हैं। आम आदमी जो है इनमें विश्वास रख के, क्योंकि
क्योंकि हम भी चाहते हैं जल्दी से हमको कुछ मिल जाए, हम मेहनत करना चाहते नहीं। हम सब इसमें लगे हुए हैं कि अच्छा जाएं और कुछ एक बार माथा टिका दे, बेलपत्र में मत हनी लगा करके और शिवलिंग को टिका दे, बेटा तो मेरा पास कर ही जाएगा। तो हम ऐसा चाहते हैं, इसकी वजह से ऐसी लोगों की दुकान चलती है। तो जैसा आपका प्रश्न था, मैं जरूर अपनी खोज में हमेशा लगा रहता हूं, लेकिन मेरी खोज ऐसी जगह पे है जहां चीजें निराकार है। सर, शिल्पी फ्रॉम दी मीडिया, जब आपने आश्रम 3 की शूटिंग की थी तो फिल्म के सेट पर काफ़ी तोड़फोड़ हुई थी, उस दौरान पुलिस को भी आना पड़ा था, तो इसके एक्सपीरियंस के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, एक दिन अचानक बिना किसी संवाद के 50-60 लोग चले आए। सेट पे तो नहीं आ पाए थे, वो जहां गाड़ियां वाड़ियां लगी हुई थी वहां आए थे, अपना कुछ करतब दिखाया, कुछ नारेबाजी की, और हमने उनको रोकने की कोशिश की, उनसे संवाद करने की कोशिश की, अपने लोगों को रोका, क्योंकि हमारे लोग भी बहुत उत्तेजित हो गए थे, यूनिट के लोग थे, परेशान थे। 1 घंटे तक चला। 1 घंटे के अंदर में फिर लोकल पुलिस प्रशासन और व्यवस्था और लोग, वहां के भोपाल के बहुत सारे गणमान्य लोग, सब सारे के सारे पहुंच गए। जब मामला खत्म हो गया, उस 1 घंटे के बाद में हमारा काम वापस शुरू हुआ और फिर कभी कोई बाधा नहीं है। देखिए, नकारात्मकता जब भी किसी ऐसे विषय को लेकर के जो कि सामूहिक रूप से चर्चा के या बात करने के विषय होते हैं, जब मैंने राजनीति बनाई, जब गंगा जल बनाई, जब आरक्षण बनाई, जब सत्याग्रह बनाया, तब भी होती थी। मैं हमेशा ये सोचता हूं कि हर एक नकारात्मक विचार के सामने हजारों सकारात्मक विचार हैं, इसलिए उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। और यह सत्य है, सत्य को लेकर के नेगोशिएट करके आदमी चलता है, और वो भी ऐसा ही हुआ। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हुई। मैंने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि ऐसी चीजें आती हैं और जाती हैं, जैसे कि कभी आपको बुखार आता है और उतर जाता है, साधारण सी बात। ईशा मैम, आपके लिए एक सवाल है। बॉबी देओल के साथ आपका स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ही कमाल का रहा ट्रेलर में, जो देखने को मिला है अब तक, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? शूटिंग के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा बॉबी सर के साथ? इसके पहले ये जवाब में मैं आपको सत्य बता दूं कि पहले 2 एपिसोड में भी 2 चैप्टर जो हमारे हैं, उन 2 चैप्टरों में ये थी, ये कहते हैं कि नहीं थी, पैसे की वजह से नहीं आई, लेकिन हॉवर कर रही थी, अदृश्य रूप से ये थी। जब नेगोशिएशन पक्की हो गई तो तीसरे में उतर आई, और आते ही इन्होंने बॉबी देओल के अंदर का भगवान निकालना शुरू किया। अब आप समझ सकते, बाकी अब जब आपने तो सब बोल ही दिया सर, बट बहुत अच्छा रहा। अपने लोग हैं, सच बोलने में कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा रहा। प्रकाश सर के साथ मैं पहले कर चुकी, मेरी करियर की 3री फिल्म सर के साथ थी। तो सबसे पहले मैं उस चीज़ के लिए बहुत खुश थी कि जिनसे आपने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की, तब तक एक्चुअली मेरी फर्स्ट फिल्म रिलीज भी नहीं हुई थी, एंड उनके साथ दोबारा काम करना एक अलग कॉन्फिडेंस से आप आते हैं। अब मैं उन्हें ज़्यादा कम तंग करती थी। इस बार सर मुझे सेट पे बस आफत की प्रक्रिया बुलाते थे, बिकॉज आते ही मेरा कुछ हो जाता था, अलग अच्छा ये करना है, ये करना है। बट बॉबी एकदम ही अलग है मुझसे, बहुत ही शांत है, बहुत ही उनका स्वभाव, जैसे हम बोलते हैं ब्लू ब्लड, हमारे दिल्ली में बहुत बोलते हैं, वो वैसे उनकी नेचर बहुत शांत है। इट्स गुड टू शूट विद हिम, इट्स गुड फन, बिकॉज बचपन में हम सब ने दुनिया हसीनों का मेला करते हुए उन्हें देखा है, एंड देन आई फील जब मैंने उन्हें आश्रम में देखा एंड देन आई सॉ हिम इन रियल टू शूट विद हिम, इट वाज अ प्लेजर। इट्स ऑलवेज गुड जब आपके को एक्टर्स बहुत रिस्पेक्टफुल होते हैं, दे रिस्पेक्ट योर टाइम, दे रिस्पेक्ट यू, यू नो, एंड कोई एनिमोसिटी नहीं होती सेट पे, इट्स ऑलवेज अ गुड एनवायरनमेंट। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज फ्रॉम द पंजाब टीवी। सर, मेरा जो सवाल है ये कि जैसे अभी देश में, हमारे देश जो है वो हिंदू भावना को लेकर के काफ़ी हो रहा है,
और अभी कहीं न कहीं देश में हिंदू भावना को लेकर जो आश्रम में जो भावना लोगों की जुड़ी है हमारे देश में। एक सेकंड जरा सा, आपने पूरे के पूरे एपिसोड में हिंदू शब्द कहीं इस्तेमाल हुआ है? नहीं, किसी भी हिंदू देवी देवता की तस्वीर तक देखी आपने कहीं पर? किसी भी हिंदू धर्म के रिचुअल की कहीं भी बातचीत हुई है? नहीं हुई। आगे बढ़िए। तो एक तरफ हमारे देश में जो चल रहा है, इस बीच में आश्रम का आना, ये कहीं न कहीं ऐसा नहीं लगता कि जो एक आग की पानी कर रहे हैं, आगे से एक एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, आग से खेलने वाली बात हो रही है जब एक तरफ देश में ऐसे माहौल चल रहा है। देखिए, देश का माहौल अपनी जगह पर है, देश की सोच अपनी जगह पर है, और जब आप देश का माहौल कहते हैं तो मुझे लगता है कि पूरे देश का माहौल तो नहीं हो सकता, कहीं कहीं इस माहौल की बातचीत हो सकती है। कुछ लोग इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, कुछ लोग इसको कहें बढ़ावा दे सकते हैं, पर बहुत सारा कुछ है इस देश में। ये देश हर चीज को कंटेन करता है और होना भी चाहिए। धर्म की बात है तो होना भी चाहिए, लेकिन हम तो धर्म की बात कर ही नहीं रहे। ये तो एक ऐसे बदनाम आश्रम की कहानी है जहां उस धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाया जाता है। तो आपके शरीर के अंदर में अगर कोई बीमारी होगी तो उसका इलाज चाहिए कि नहीं? आपको चाहिए ना? वही कर रहा हूं। हेलो सर, मेरा नाम रेनू है और सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी। वो इसलिए कि आपकी चाहे फिल्म्स हो या वेब सीरीज हो, वो सारी ऐसी हैं जिसमें सिर्फ मनोरंजन नहीं है बल्कि सोसाइटी को आपने कायना में दिखाया और उसकी सफाई का काम भी किया है इनडायरेक्ट वे में। धन्यवाद। और आश्रम को भी जब मैं देखती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी जो गुमराह होती है वो इस तरह के मनोरंजन से, जो केवल मनोरंजन नहीं है बल्कि उन्हें अपने आप को देखने और झांकने का मौका भी देता है। तो उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि हमारी सोसाइटी इन बाबुओं के चक्कर में बहुत फंस चुकी है। और सवाल ये है कि सर अभी आप आकर के हमारे साथ स्टेज पे बैठे ना प्लीज। सवाल ये है कि सर आपने कहा कि फिल्म और वेब सीरीज में आपका कोई ज़्यादा अंतर नहीं लगता। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे हम कोई फिल्म देखते हैं या फिल्म बनाते हैं, उसकी स्टोरी होती है, शुरुआत होती है और अंत होता है। ये आश्रम 3 आ रहा है, तो जब आपने फर्स्ट बनाया तो क्या उस समय पूरी स्टोरी आपके ये लेकर चल रहे थे आपकी, अगर ये अच्छा रहता है तो कोई सूत्र छोड़ दो जो सेकंड को आगे लेकर जाए, और थर्ड बनाया है तो क्या कोई सूत्र, मतलब मैं जानना चाहती हूँ जो वेब सीरीज की मेकिंग होती है उसमें क्या डायरेक्टर कुछ ना कुछ इस चीज़ की प्रतीक्षा करते हैं कि हमारी अगर वेब सीरीज अच्छी चल गई है, लोगों को पसंद आ गई, तो हम उस स्टोरी को इस तरह से बनाएं कि वो आगे सूत्र फिर होती चली जाए। मतलब मैं इस चीज़ को समझना चाहती हूँ। आपने बिल्कुल सही सवाल किया है, और एक तो है कि कहानी का नेचुरल प्रोग्रेशन, या कहिए जिसको ऑर्गेनिक प्रोग्रेशन कहते हैं, कि कहानी की डिमांड है। अब इसमें पहले 2 चैप्टर में आपने देखा कि बाबा का जाल बढ़ता जा रहा है, ऐसा कुचक्र उसका बढ़ता जा रहा है, उसकी शक्ति जो है बढ़ती जा रही है। तो अब आपके मन में बात आएगी कि इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे करेगा वो, और इसका इस्तेमाल अगर वो 3रे चैप्टर में करता है और एक ऐसे मुकाम पे पहुंचता है जहाँ की प्रचंड हो गया है, तो आपके मन में बात आएगी कि अच्छा इसके बाद क्या हो सकता है, कोई शक्ति इतना शक्तिशाली हो जाए तो क्या होगा उसके बाद। तो ये चीजें जैसे आपके दिमाग में आती है वैसे हमारे दिमाग में भी आती है। और बाकी तो सूत्र छोड़ने की बात, तो सूत्र ना भी छूटा रहे तो हम छुड़वा देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन एक कहानी की अपनी डिमांड होती है, कहानी की मांग होती है, और फिर इसमें कई भी नए चैप्टर आ सकते हैं। अब इसी आश्रम को अगर फिर बढ़ाना होगा तो कोई नया आयाम आएगा, कोई नई बात आएगी, उसको लेकर के बढ़ सकती है बात। लेकिन जब तक आपके मस्तिष्क को इंगेज करके रखूंगा तब तक ही बात बनेगी, और जब आपको लगने लगेगा कि अच्छा ये तो रिपीट हो रही है बात, और ये तो हो चुकी है बात, या ये और क्या हम देख रहे हैं, या इसमें मजा नहीं आ रहा, तो खत्म हो जाएगी चीज।
One अब- last question. अब और कितने सवाल एक last question. जैसे अभी बात हुई बट मैं यहाँ पे हिंदी की बात करना चाहूँगी क्योंकि आप मेजरली यू डील विद हिंदी लैंग्वेज एंड राइट नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ डिबेट गोइंग ऑन हिंदी वर्सेस साउथ तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट लाइक डू यू थिंक इट्स काइंड ऑफ आई मीन व्हाट्स योर टेक ऑन हिंदी पोजीशन What is your question? Like, I mean, which is हर भाषा अपना महत्व रखती है और हिंदी हमारे देश में लगभग सब जगह बोली जाती है और समझी जाती है और एक आम परिचालन की भाषा है। तो उसका अपना स्थान है उसी वजह से। लेकिन हमें बाकी जितनी भी भाषाएं हैं हमारे देश में सब इतनी संपुष्ट हैं, सुदृढ़ हैं, गंभीर हैं और सब में इतना साहित्य है कि हम किसी को नकार नहीं सकते। चाहे वो पंजाबी हो, चाहे बंगाली हो, चाहे उड़िया हो, चाहे तमिल हो, तेलुगु हो, मराठी हो, मलयालम हो, गुजराती हो, जितनी भी भाषाएं हमारे यहाँ हैं, सारी भाषाओं का अपना मान है, अपना मोल है और हमें सबको मानना चाहिए। मुझे तो कई बार बड़ी शर्म आती है कि मैं अपने ही देश की भाषाओं को नहीं समझ पाता या नहीं बोल पाता कुछ भाषाओं को। मैं प्रयास रहता है कि मैं जहां भी जाऊं वहां से कुछ सीख करके आऊं, कोशिश रहती है। तो इस सुंदर से देश में जहां इतनी सारी सुंदर भाषाएं हैं, भोजन है, संस्कृति है, परिवेश है, सबका मान है, तभी तो मिलकर के हम कहते हैं कि देश हमारा गुलदस्ता है। धन्यवाद। Thank you. But an ashram is also available in multiple languages. There's Yes. Tamil, there's Telugu, we've tried Punjabi for the first time, there's Bengali. So we make sure that if a story can transgress language, which it does, a good story always does, so it doesn't matter where it's coming from. So I also wanted to ask one thing. Is Ashram the biggest show on MX Player right now because you're sharing numbers? So is it the biggest show on MX currently? Yes, it is. It is definitely the biggest show in terms of, because it's the third season. A lot of shows have come to the second season. But the numbers that Ashram has probably achieved, I don't think it's only MX. I would err on the side of caution, but I would really say that it was probably one of the most watched shows on the planet. 1.6 billion views, 160 million unique viewers. That's 16 crore people. It's not small. They don't exist even on OTT platforms, to be honest with you. If you put all the OTT platforms together, they would have 160 million viewers on one show. And I think that's the beauty of it, right? 50 million views in less than 17 hours. Doesn't happen in YouTube either. 155 million active. It's the distribution of the platform. So the sampling of this is एक IPL जो है ना उसकी एक्टिव व्यूअरशिप जो है वो 8 मिलियन की होती है। 2 IPL मिला दे तो उतना एक आश्रम है। इसीलिए मेरी लड़ाई चल रही है इनके साथ, क्योंकि IPL का पूरा सीजन खरीदने के लिए 5,000 करोड़ दिए थे और मुझे MX ने सिर्फ 4,000 करोड़ दिए। ये हमारी लड़ाई चल रही है इनके साथ। 1,000 करोड़ और मिल जाए तो ईशा का पैसा दे दे पूरा। Sir, thank you so much, brother. Sir, I have Aditi. one question, Prakash. Actually, Can we? Yeah. You have the Prakash sir? like you know, Baba. Prakash sir is here. Yeah. We'll just wrap up with the photo ops and then we will. Yeah. Thank you so much. Center. Okay.
Thank you.